चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। कुणाल भाई भजन आरंभ कीजिए। Yeah, this is probably the first time I am trying to sing. लास्ट वीक अमी ने जो पोस्ट दिया था जिसमें वो विजुअली हैंडीकैप लड़का जो बोल रहा था भगवत गीता कोई किसी भी पॉइंट पे उसको बोलो वो पूरा पढ़ पा रहा था और एंड में उसने ये भजन गाया था और वो मेरे पेरेंट्स भी गाते थे तो बस आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम ट्राइंग टू सिंग दैट भजन. दिस इज़ अ वेरी ओल्ड पॉपुलर वन, शंकर भगवान का है, शंभू शरणे पड़ी. सो आई विल ट्राई टू सिंग दैट. All Gujaratis know it. शंभु शरणे पड़ी मागू घड़ी घड़ी दुख कापो दया करी दर्शन शिव आपो तमें भक्तो न दुख हरनारा शुभ सौनु सदा करनारा. हूँ तो मंदिर मती तारी अकड़ गति कष्ट कापो दया करी दर्शन शंभु आपो. अंगे भस्म श्मशाननी चोड़ी संगे राखो सदा भूत टोड़ी. लाले तिलक कर्यु कंठे विष धर्यु अमृत आपो दया करी दर्शन शंभु आपो. नेति नेति जावेद कहे छे मारू चितड़ू त्या जावा चाहे छे. सारा जग में छे तू वसुधारमहु शक्ति आपो दया करी दर्शन शंभु आपो. घोड़ा शंकर भव दुख कापो नित्य सेवानु शुभ धन आपो. ताड़ो मान मदा गाड़ो गर्व सदा भक्ति आपो दया करी दर्शन शिव आपो.
દયાકારી દર્શન શિવ આપો, શક્તિ આપો, ભક્તિ આપો. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ જ સરસ. ખૂબ જ સરસ. નાઇસ તમે નાઇસ, વેરી નાઇસ. ફ્રીક્વન્ટલી ગાતા રહો કુણાલભાઈ. ઇટ વોઝ બ્યુટીફુલ. થેન્ક યુ. બ્રહ્મ નિર્માણ પ્રજ્ઞાજી. Yeah, I will be just. ॐ इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम જેવા સંત ગીતા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે તે ભગવાનની કૃપા જ કહેવાય. તો ભક્તિ યોગ અધ્યાય 12 ત્રીજા શ્લોકનું વિવેચન કરવા પ્રયત્ન કરીશ. ક્યાંક ભૂલ થઈ જાય અથવા શબ્દોમાં આગળ પાછળ બોલાય તો ક્ષમા યાચના માંગુ છું. શ્લોક નંબર 3. એ ત્વક્ષરમ અનિદેશ્યમ અવ્યક્તમ પર્યુપાસતે સર્વત્ર ગમચિંત્યમ ચ કુટસ્થમ અચલમ ધ્રુવમ. પરંતુ જે ભક્તો મન બુદ્ધિથી પર સર્વવ્યાપક જોવામાં ન આવનારા નિર્વિકાર, નિત્ય, અચળ, અક્ષર અને નિરાકારની તત્પરતાથી ઉપાસના કરે છે તે તું અને પરંતુ શબ્દભેદ દર્શાવે છે. ભગવાનની ઉપાસના કરનારમાં ભેદ છે. અક્ષરમાં અને ભગવાનમાં ભેદ સ્પષ્ટ છે. અક્ષર અનિર્દેશય એટલે વાણીથી નામ આપી શકાય નહીં તેવું છે. ભગવાનના પોતાની ઈચ્છાથી અલૌકિક નામો હોય છે. અક્ષર અવ્યક્ત છે જ્યારે ભગવાન વ્યક્ત છે. અક્ષર સર્વત્ર રહેલું છે જ્યારે ભગવાન ભક્તોથી જ પ્રાપ્ય છે. અક્ષર અચિંત્ય છે જ્યારે ભગવાનનું ભક્તોથી ચિંતન થઈ શકે છે. અક્ષર કુટસ્થ નિર્વિકાર હોવાથી સર્વને સમાન અથવા સાધારણ છે. ભગવાન અસાધારણ છે. અક્ષર અચલ એટલે સ્થિર છે. ભગવાન વિહાર કરે છે. અક્ષર ધ્રુવ અર્થાત સ્થિર રૂપ છે. ભગવાન તે ધામમાં રહેનારા ઈશ્વર છે. તેથી જેઓ અક્ષરની ઉપાસના કરે છે તેઓને બ્રહ્માનંદની અથવા મારા સ્થિર સ્વરૂપની જ પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે હું થોડાક શબ્દો છે એનું હું થોડુંક વિવેચન કરવા માંગુ છું. ટાઈમ થોડોક વધારે લેવાઈ જાય છે તો ક્ષમા માંગુ છું. અચિંત્યમ એટલે મન બુદ્ધિનો વિષય ન હોવાને કારણે અચિંત્યમ પદ નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મનું વાચક છે. કેમ કે મન બુદ્ધિ પ્રકૃતિના કાર્યો હોવાથી સંપૂર્ણ પ્રકૃતિને પણ પોતાનો વિષય નથી બનાવી શકતા. પછી પ્રકૃતિથી અતીત પરમાત્મા
એમનો વિષય બની જ કેવી રીતે શકે, આ એનો મિનિંગ થાય છે. પછી સર્વત્ર ગમ, સર્વ સ્થળ કાળ વસ્તુ અને વ્યક્તિઓમાં પરિપૂર્ણ હોવાથી બ્રહ્મ સર્વત્ર ગમ છે. સર્વવ્યાપી હોવાને કારણે તે સીમિત મન બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ નથી કરી શકાતું. અનિર્દિશ્યમ, જેને ઇદંતાથી નથી બતાવી શકાતું, અર્થાત જ ભાષા વાણી વગેરેનો વિષય નથી, તે અનિર્દેશ્યમ છે. નિર્દેશ એટલે સંકેત, એટલે કે તેનો જ કરી શકાય કે જે જાતિ ગુણ ક્રિયા તેમજ સંબંધથી યુક્ત હોય અને સ્થળ કાળ વસ્તુ તેમજ વ્યક્તિથી પરિચિન હોય, પરંતુ જે ચિન્મય તત્વ સર્વત્ર પરિપૂર્ણ છે તેનો સંકેત જડ ભાષા અને વાણીથી કેવી રીતે કરી શકાય. અચલમ, આ પદ આવવા જવાની ક્રિયાથી સર્વથા રહિત બ્રહ્મનું વાચક છે. પ્રકૃતિ ચલ છે અને બ્રહ્મ અચલ છે. કુટસ્થમ, આ પદ નિર્વિકાર અને સદા એકરસ રહેવા વાળો સચ્ચિદાનંદ ઘન બ્રહ્મનું વાચક છે. બધા જ સ્થળ કાળ વસ્તુ વ્યક્તિ વગેરેમાં રહેતું હોઈને પણ તે તત્વ સદા નિર્વિકાર અને નિર્લિપ્ત રહે છે. ધ્રુવમ, જેની સત્તા નિશ્ચિત સત્ય અને નિત્ય છે તેને ધ્રુવ કહે છે. સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ સત્તા રૂપે સર્વત્ર વિદ્યમાન રહેવાથી ધ્રુવમ છે. અક્ષરમ, જેનો કદી ક્ષય અર્થાત વિનાશ નથી થતો તથા જેમાં કદી કોઈ ઉણપ નથી આવતી, તે સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ અક્ષરમ છે. અવ્યક્તમ, જે વ્યક્ત ન હોય અર્થાત મન બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયનો વિષય ન હોય અને જેનું કોઈ રૂપ કે આકાર ના હોય તેને અવ્યક્તમ કહેવામાં આવ્યું છે. પર્યુપાસતે, આ પદ અહીં નિર્ગુણ ઉપાસકોનું સમ્યક ઉપાસનનું બોધક છે. શરીર સહિત સઘળા પદાર્થો અને કાર્યોમાં વાસના તથા અહમ ભાવનો અભાવ તથા ભાવરૂપ સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મામાં અભિન્ન ભાવે નિત્ય નિરંતર દ્રઢ સ્થિતિ રહેવી, એને જ ઉપાસના કરવી કહેવાય છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ જ સરસ, એકદમ ડિટેલમાં સમજાવ્યું તમે. ટાઈમ પણ તમારો વધારે જોવે એની બદલે અમે લઈ લીધું વધારે. કોઈ વાંધો નહીં. આ એક એક ગુણ નિર્ગુણ નિરાકારના ગુણ હતા. હા, અને દરેકે દરેક ગુણ સમજવા જેવા હતા. તમે આપણા વિડીયોમાં જશો તો તમને આ શ્લોક પર વિસ્તારથી એક એક ગુણ પર આપણે ચર્ચા કરી હતી એ વખતે. એનું રેકોર્ડિંગ હશે આપણી પાસે. તો આગે बढ़े. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9, राज विद्या राजगुह्यम योग. आरंभ कौन से श्लोक से किया? इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम अनसूयवे. अब तुझे मैं गुह्यतम ज्ञान दूंगा, द मोस्ट सीक्रेट, रहस्यमय ज्ञान विज्ञान सहित. ना केवल ज्ञान ना केवल विज्ञान, लेकिन दोनों समग्र ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात. ये जानने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा. कहां से? अशुभ संसार से आपको मुक्ति प्राप्त होगी. ऐसा ज्ञान और विज्ञान समझाऊंगा मैं तुझे हे अर्जुन, जो गुह्यतम है. गुह्यतम के विषय में हम समझे पिछली बार. जो कर्म योग है वो गुह्य है, निष्काम भाव से कर्म करना. कहीं ना कहीं सकाम वृत्ति आ ही जाती है हमारी. सकाम वृत्ति हमें ज्यादा दौड़ाती है कर्म करने को, सहज है. निष्काम वृत्ति छुपी पड़ी है, उसको बाहर लानी पड़ती है हमें. ये सिर्फ तेरे लिए नहीं जीना है, अन्य के लिए भी जीना है, क्योंकि तू मनुष्य है और ये समझ ईश्वर ने केवल तुझे दी है. ये रहस्य है. अपने लिए सहज हम करते हैं, दूसरों के लिए करने के लिए हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, मैं कौन हूं. तब निष्काम भाव आता है कि मैंने मनुष्य का जन्म लिया और केवल मुझ में ही ये क्षमता है कि मैं मेरा ना देखकर अन्य का भी देखो. तो ये गुह्य है कर्म योग. ज्ञान योग गुह्यतर, उससे भी डिफिकल्ट. स्व को जानना, अपने आत्मा का साक्षात्कार करना,
ये इससे भी बड़ा रहस्य है। हम सब मानते हैं आत्मा है, लेकिन देखा किसी ने? अव्यक्त, अनिर्देश्य, अचिंत्य, आज जो भी नीता बहन ने कहा वो सब विशेषण आत्मा को लग सकता है। अक्षर, अचिंत्य, व्यक्त, निर्देश्य, कूटस्थ। इसे कैसे समझेंगे हम? इसे कैसे जानेंगे हम? इसके लिए गुह्यतर ज्ञान मार्ग में बुद्धि का आश्रय लेकर विवेक पहले जागृत करना पड़ेगा। तीव्र बुद्धि के द्वारा इस विश्व को समझना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा, ईश्वर को समझना पड़ेगा। तब सत और असत का भेद हमारी दृष्टि के सामने आएगा। उसके बाद ज्ञान योग का आरंभ होता है कि मैं ये जड़ तत्व नहीं, मैं चैतन्य तत्व आत्मा हूं। इतना इजी नहीं है ये। इसके लिए गुह्यतर, सबसे गुह्यतम भक्ति, क्योंकि भक्ति ईश्वर के बिना संभव ही नहीं, और ईश्वर गुह्यतम है। भगवान, परम तत्व, कुछ भी कहिए आप, स्व को खोज सकेंगे आप, लेकिन परम को खोजना अति कठिन। वो जब परम की कृपा होगी तभी आपको वो प्राप्त होगे। इसके लिए 12वें अध्याय हमने शुरुआत की। भगवान तो सभी को प्यारे हैं, भगवान किसको प्यारे नहीं है? लेकिन प्रश्न ये है कि भगवान को कौन प्यारा है? इतने सारे भक्त, उसमें से भगवान को कौन सा भक्त प्यारा है? भक्ति योग में कहा भगवान ने 13वें से 19वें श्लोक में, ये क्वालिटी जिसमें होगी वो भक्त मुझे प्रिय है। हमारे अंदर ये जब गुण आएंगे तब हम अधिकारी बनेंगे भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तब कहीं जाके भगवान हमें दर्शन देंगे। ध्रुव जी को जैसे 99 जन्म के बाद मिला दर्शन भगवान का, भगवान तब उसके सामने प्रकट हुए, वैसे अधिकारी बनना पड़ता है उसके लिए। इसके लिए ये गुह्यतम, तो ये जो गुह्यतम है भक्ति, जो भगवान के बिना संभव ही नहीं। कर्मयोग संभव है भगवान के बारे बिना। निष्काम भाव से कर्म करो तो कर्मयोग सिद्ध हुआ। ज्ञान, ज्ञान योग, स्वयं को जान। अब बुद्धि के द्वारा स्वयं को जान सकते हो, उसमें भी आवश्यक नहीं कि ईश्वर हो ही, लेकिन भक्ति परम, भगवान के सिवा भक्ति हो ही नहीं सकती। जैसे शिष्य गुरु के होते हैं, स्टूडेंट टीचर के, बालक माता के होता है, वैसे ही भक्त केवल भगवान के होते हैं। तो भगवान गुह्यतम, और यहां पर भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान सहित, यानी मैं संपूर्ण रूप से तेरे सामने प्रकट होऊंगा, मैं कौन हूं ये तुझे समझाऊंगा। एक बहुत ही सरल भाषा में यदि समझना हो तो ज्ञान जो है वो इस विश्व का, सृष्टि का, और जो विशिष्ट ज्ञान है वो इस आत्मा का, परमात्मा का। एक फिजिकल, एक स्पिरिचुअल। हमने फिजिकल वर्ल्ड में बहुत आगे निकल गए हम। साइंस ने देखो 10 महीने के बाद स्पेस में से सुनीता विलियम जी वापस आ रहे हैं। 10 महीना कोई स्पेस में रहा, सोचो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो फिजिकल वर्ल्ड में, जड़ विश्व में विज्ञान ने बहुत प्रगति की। और ये देखो कॉन्ट्राडिक्शन, जिसे हम लौकिक जीवन में विज्ञान कहते हैं वो दरअसल आध्यात्मिक दृष्टि से केवल ज्ञान है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। बट आध्यात्मिक दृष्टि से विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान क्या है? ईश्वर का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ये विज्ञान है। तो जड़ एवं चैतन्य का ज्ञान, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, ये दोनों ही, दिस विल मेक समग्र, समग्र ज्ञान दूंगा तुझे अर्जुन, जो गुह्यतम है में, अर्थात मेरे स्वरूप। भक्ति गुह्यतम है, मेरा स्वरूप क्या है मैं तुझे दर्शन दूंगा।
मुझ तक आने का कैसा, ये मार्ग बताऊंगा मैं तुझे, कौन मुझे प्राप्त कर सकता है। ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है इस सृष्टि का। टेलीस्कोप से देखने से चांद और तारे दिखेंगे, भगवान नहीं दिखेंगे। हमारी आंखों में इतनी शक्ति ही नहीं है, कितने भी उपकरण बना लो, ईश्वर तक पहुंचने की इसमें ताकत नहीं है। तो ऐसी इंद्रियातीत जो तत्व है ईश्वर, उसको कैसे पाने का, उसका रहस्य इसके लिए गुह्यतमम, गुह्यतमम है। तो ये पहला श्लोक था हमारा। अब दूसरे श्लोक में भगवान इस गुह्यतम जो है उसका महात्म्य हमें समझाते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो शिक्षा है, ये जो विद्या है जिसके द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त करोगे, उसका महात्म्य क्या है। कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा ना कि इसको गुह्यतम कहा, इस विद्या को। तो वो महात्म्य दूसरे श्लोक में हमें भगवान समझाएंगे। हमने आरंभ किया था दूसरे श्लोक का पिछली बार, उसका आगे कंटिन्यूएशन करते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम, राज विद्या यानी राजा बनने की विद्या। हम राजा कैसे बन सकते हैं, इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं, इसे राज विद्या कहेंगे। सगली विद्या राजा। राज विद्या यानी राजा बनने की विद्या नहीं, सभी विद्याओं का जो राजा है वो। राजा का क्या लक्षण है, विद्याओं का राजा, राजा का लक्षण क्या है। राजा अर्थात टॉप मोस्ट पोजीशन, सर्वोच्च स्थान। इससे ऊपर एक राज्य में कोई भी स्थान नहीं। आज राजा रजवाड़े नहीं रहे, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बदल गई। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, गणतंत्र। इसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये दो के ऊपर कोई पद नहीं। अगर एक बार आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन गए तो उसके बाद करने का क्या कुछ नहीं, नो चैलेंज लेफ्ट। सबसे ऊपर पहुंच गए आप, अभी घर पे जाके आराम करो। उसके बाद अमेरिका में सिस्टम है ना, 2 ही बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, उसके बाद क्या करने का, कुछ नहीं, आराम करो, बुक लिखो घर में बैठ के। तो राजा यानी सर्वोच्च पद, इससे ऊपर कुछ नहीं। तो ये वो विद्या है जो सर्वोच्च है। ये विद्या प्राप्त करने के बाद आपको कुछ भी और जानने की, समझने की, सीखने की आवश्यकता नहीं, या इससे आगे कुछ है ही नहीं। ये राज विद्या। आज लौकिक व्यवहार में हम कहते हैं कि जितना भी सीखो कम है, मरते दम तक हमें सीखना चाहिए। क्योंकि हम कुछ भी सीखे, जो कुछ भी सीखे, उससे आगे कुछ है विश्व में सीखने के लिए। वी कैन नॉट लर्न एवरीथिंग, बट ये राज विद्या वो है जो विद्याओं का राजा है, और इससे आगे सीखने का कुछ भी नहीं। जैसे संगीत में शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, इसकी क्या व्याख्या है, इट इज कंप्लीट, इसके आगे कुछ नहीं। ये सीख लिया तो इसके आगे सीखने का कुछ भी बाकी नहीं रहता। जैसे पाणिनि का व्याकरण 2000, 2500, 3000 साल पहले उन्होंने जो संस्कृत व्याकरण बनाया था, आज तक ना उसमें से कुछ कम हुआ है, ना उसमें कुछ एडिशन हुआ है। ये बताता है कि वो पूर्ण है, इसमें और कुछ भी ऐड करने की अवकाश नहीं, इसके आगे कुछ भी नहीं। ये राज विद्या, राज विद्या यानी ब्रह्म विद्या, जिसके द्वारा हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, वो ब्रह्म विद्या। उस ब्रह्म विद्या, उस राज विद्या का ज्ञान अर्जुन मैं तुझे दूंगा।
राज विद्या राजगुह्यम, अर्थात जो गुह्य है, जो सीक्रेट है, रहस्य है, उसका भी राजा, यानी इससे ज्यादा कुछ भी सीक्रेट नहीं। अणु अणु में विष्णु व्याप्त है, अणु अणु में विष्णु व्याप्त है। ये विश्व सारा ब्रह्मांड अणु से बना हुआ है। यदि उस अणु को ही मैं समझ लूं तो, यदि उस अणु का ही ज्ञान मुझे हो गया तो, यदि उस विष्णु का ज्ञान मुझे हो गया तो एक क्षण में सारे ब्रह्मांड का ज्ञान मुझे हो जाए। विष्णु को ही प्राप्त कर लिया मैंने, तो सारे ब्रह्मांड के अणु में जो बसा हुआ है वो सारे अणु को जान लिया मैंने। इसके लिए राज विद्या राजगुह्यम, इससे गुह्य, इससे रहस्यमय आगे कुछ भी नहीं है। इसके लिए इस ब्रह्म विद्या को मैं कहूंगा हे अर्जुन, जिसे प्राप्त करने से मोक्ष मिलता है। कुंभ का समापन हो गया है। कुंभ गंगा के किनारे था, प्रयागराज त्रिवेणी संगम। कुंभ में डुबकी लगाने से पाप नष्ट होते हैं। कोई बताएगा जमुना में डुबकी लगाने से क्या होता है? यदि गंगा में डुबकी लगाने से पाप नष्ट होता है तो जमुना में डुबकी लगाने से क्या होता है? कृष्ण मिलते। कैसे कैसे कृष्ण मिलते हैं डुबकी लगाने? गंगा में तो पाप धुल गए, जमुना में डुबकी लगाने से क्या मिलेगा मुझे? કારણ કે યમુના મહારાણીમાં છે એ બધા જ વૈષ્ણવોને કે બધા જ લોકોને એ ભગવાનના ચરણોમાં લઈ જતા હતા, એટલે ડૂબકી મળવાથી કૃષ્ણ ભગવાન એની પાછળ એક लॉजिक છે। यमुना में डुबकी लगाने से क्या मिलेगा? यमुना में डुबकी लगाने से आपके पाप का नाश होगा और आपके पुण्य का भी नाश होगा। जब पाप और पुण्य दोनों ही जीरो हो गए तब मेरा वापस इस पृथ्वी पर आने का कोई प्रयोजन नहीं है। जब तक मेरी पुण्य की बैंक में भी जमा है तब तक वो भुगतने के लिए मुझे एक अच्छा अवतार प्राप्त होगा। अच्छा अवतार लेकर मुझे वो जो मेरा पुण्य है वो भोगने के लिए भी मुझे वापस आना पड़ेगा। वो सुख भी मैं भोगूंगा, लेकिन पुनर्जन्म तो हुआ ही, इस मृत्यु लोक में वापस आना हुआ ही। यमुना में डुबकी लगाने से पाप और पुण्य दोनों जीरो हो गए। अब अकाउंट नील। अभी कृष्ण के चरणों में वापस पृथ्वी पर आने की कोई आवश्यकता नहीं। आ रही थे कृष्ण ने मरा, परम पद प्राप्त होता है, वैकुंठ प्राप्त होता है। तो ये जो हमारा अकाउंट खोला था चित्रगुप्त जी ने, वो अकाउंट नील हो गए, अकाउंट क्लोज्ड, नो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर। अकाउंट जो सीखा है उनको मालूम होगा कि कैरी फॉरवर्ड होता है, डेबिट क्रेडिट जो भी खाते में पड़ा है वो यहाँ पे नील। सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट चित्रगुप्त जी थे विश्व के, सबका अकाउंट रखते थे। और ऑडिटर यमराज ऑडिट करने आते थे अंत में, हमारा पाप है कि पुण्य है उसके मुताबिक ले जाते थे स्वर्ग में या नरक में। ऑडिट रिपोर्ट देते थे भगवान को। ये यमुना मोक्षदायिनी है, पाप और पुण्य दोनों का नाश करता है, करते हैं हमारे। तो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम। इदम यानी क्या? इदम यानी ये, बट ये किसकी बात कर रहे हैं भगवान? ये राज विद्या की बात कर रहे हैं। ये जो राज विद्या की मैंने बात की है वो पवित्रम, पवित्रता ये कब आती है? पवित्रता तब आती है जब हम ईश्वर के समीप होते हैं। मंदिर में भी यदि 10 मिनट हम बैठे तो हमारे मन में बुरे विचार नहीं आते हैं। मन में भक्ति प्रकट होने से मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर से समीप होने पर हमारे अंदर का पाप अपने आप शमन हो जाता है उसका।
बट जैसे ही भगवान से दूर हटे, घर में मंदिर के सामने बैठकर पूजा की हमने, और जैसे ही बाहर निकले ऑफिस जाने के लिए, देखिए बाहर पैर रखते ही प्रकृति से, विश्व से, संसार से वापस जुड़ गए और विचार टोटली बदल गया। 10:15 समापन करते ही करचरण कृतम बोलने के बाद देखो क्या हुए आपके मन में विचारों का। ये क्या हुआ? ईश्वर से दूर, ईश्वर से हम दूर गए, तो संसार घुस गया मन के अंदर, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं सब बदल डाले। तो यदि पवित्र होना है तो ईश्वर के समीप जाना पड़ेगा। और ये विद्या कौन सी है? तो ईश्वर के समग्र रूप को भगवान के हमें बताएगी। ज्ञान और विज्ञान के द्वारा मैं भगवान के समीप ले जाएगी। भगवान के समीप जाते ही मैं पवित्र हो जाऊंगा। तीर्थ स्थल में जाने से वो पवित्र स्थान है। क्यों कहते हैं ये स्थान पवित्र है? क्योंकि वहां ईश्वर का वास है। जहां पर भी ईश्वर का वास है वो स्थान पवित्र है। मंदिर को हम पवित्र कहते हैं, गार्डन को पवित्र नहीं कहते, सुंदर कहते हैं। जो उसके में जॉगर्स पार्क है, सुंदर है, उसे कोई पवित्र नहीं कहते। लेकिन 10th रोड पे जो हवेली है उसको पवित्र कहते हैं, कि वहां पर ईश्वर का वास है। तो सुंदरता में और पवित्रता में अंतर है। तो पवित्र जहाँ ईश्वर है वहां पवित्रता है। मन में भी अगर ईश्वर को स्थापन किया तो मन भी पवित्र हो गया। हमारे हृदय में ईश्वर को स्थापित करो, आपका सारा शरीर, देह पवित्र हो जाएगा। तो ये जो विद्या मुझे ईश्वर का संपूर्ण रूप का दर्शन कराए, भगवान के समीप ले जाए, इसके लिए ये विद्या पवित्रम है। सभी पवित्रों से पवित्र है। अब गंगा जी में नहाए, पवित्र है गंगा जी, लेकिन वो कितने देर के लिए? जब तक आप नहा के बाहर निकले तब तक। कोई भी तीर्थ स्थल हो, जब तक आप वहां पर है तब तक पवित्र था, लेकिन वापस घर आ गए तो उसका अंत हो जाता है। बट ये ब्रह्म अवस्था, ब्रह्म विद्या आपको परमानेंटली पवित्र बना दे। इसके लिए पवित्रम, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। उत्तमम यानी श्रेष्ठ। कोई कहे सीए करो, कोई कहे डॉक्टर बनो, कोई कहे इंजीनियर बनो, एमबीए, आईटी, व्हाटएवर, कितना भी ज्ञान एकत्रित कर लो आप, लेकिन इस ज्ञान की तुलना नहीं हो सकती। वे सभी ज्ञान इस जड़ विश्व को डिस्कवर करते हैं। वो सभी ज्ञान जीविका के लिए है, जीवन जीने के लिए है। वो सभी ज्ञान इस शरीर को आधार देने के लिए है। बट ये ज्ञान उत्तमम, ये मेरे आत्मा के कल्याण के लिए है, परमात्मा से मिलाता है मुझे। ये श्रेष्ठ ज्ञान, उत्तम ज्ञान, इससे ऊपर, इससे श्रेष्ठ अन्य कोई ज्ञान नहीं। इसके लिए पवित्रम इद उत्तमम, ये ज्ञान पवित्र है, ये ज्ञान श्रेष्ठ है। प्रत्यक्षावगमम, इसका फल भी हमें प्रत्यक्ष मिलता है। 1 घंटा सत्संग में हम ज्वाइन हुए तो 1 घंटा मन शांत हो गया। शांत क्यों हुआ? संसार से दूर हट गए। मन में कोई एक्टिविटी, क्या करना है इसका विचार नहीं रहा। जैसे ही मन में विचार आता है, इच्छा आती है, ये करना है, वो करना है, कि उसके आयोजन में मन लग जाता है। फिर मुझसे होगा कि नहीं ये प्रश्न होता है। ये सब मन को त्रस्त करते, स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। लेकिन जैसे कुछ करने से दूर हुए, कोई इच्छा से दूर हुए, कि मन फ्री हो गया, मन शांत हो गया। ये शांति फल है, सत्संग का फल है शांति, पीस।
और जब तक शांति नहीं है तब तक सुख नहीं। ये झूठ है कि संपत्ति से सुख आता है। मन को शांत करने से सुख आता है। कितनी भी संपत्ति हो, मन यदि अशांत है, व्याकुल है, त्रस्त है, तो सुख की अनुभूति नहीं होगी। ना तुम्हारी बुद्धि से होगा, ना संपत्ति से होगा, ना नाम से होगा, ना कोई सम्मान से होगा। जब शांति चाहिए, जब शांति प्राप्त होगी तो ही आप सुखी होंगे। ये सभी चीजें, मान, सम्मान, नाम, संपत्ति, कदाचित हमें एक दिन छोड़ के चली जाएगी। जो मान सम्मान पहले मिलता था शायद आज ना मिले, कदाचित। जितनी संपत्ति पहले थी वो आज ना हो मेरे पास, कदाचित। मान सम्मान, नाम, संपत्ति कदाचित मुझे छोड़ के जाएगी, लेकिन मैं निश्चित ही ये सबको छोड़ के जाऊंगा एक दिन। कैसी आ सकती? जो निश्चित है, ये सब जो मैं जिसके पीछे सारा जीवन भागता रहा, निश्चित है मैं ये सब छोड़ के मुझे जाना है। तो फिर किसके लिए उत्पाद कर रहा हूं मैं? क्यों मन इतना व्याकुल है? क्यों इतना अभाव? मन में जब अभाव निर्माण होता है तो मन में उद्वेग निर्माण होता है। जब संतुष्टि आती है तो अभाव निकल जाता है, पूर्णता का अनुभव होता है। और जब पूर्णता का अनुभव हुआ तो हमें शांति हुई और हम सुखी हुए। ये आध्यात्मिक जर्नी है, आध्यात्मिक एक्सरसाइज है सुखी होने की। भारत के योगी साधु संत क्यों इतने सुखी थे? ये बात समझ गए थे। किसी चीज की अपेक्षा या आकांक्षा नहीं। महान सिकंदर ने बुलाया तो भी ना बोल दिया। मृत्यु का भी भय नहीं, क्योंकि पूर्णता, मन में कोई अभाव नहीं, अपूर्णता का लेश मात्र नहीं मन के अंदर। इसके लिए मन शांत हो गया। मन शांत हो गया क्योंकि हम सत्य का संग किया, हमने ईश्वर के समीप गए, हम ईश्वर से जुड़ गए। इसके लिए मुझे व्याकुल विचलित करने वाली सृष्टि, संसार, इच्छाएं, उससे हम दूर हट गए। ये है उसका प्रत्यक्ष फल। सत्संग का प्रत्यक्ष फल है शांति। व्यक्ति सुख की अनुभूति करता है, उसे ज्ञान होता है कि ये जिसके पीछे मैं भागने वाला हूं, कदाचित वो मुझे छोड़ जाएगा, लेकिन निश्चित मैं उसे छोड़ के जाने वाला हूं। वो कदाचित छोड़ के जाएगा, लेकिन मैं निश्चित ही उसे छोड़ के जाने वाला हूं। ये विचार मेरे अंदर शांति प्रकट करता है, अभाव निकाल देता है मेरे अंदर से। क्यों मैं दौड़ रहा हूं इस चीज के पीछे? ये परम शांति की अनुभूति वो है प्रवक्षावगमम। प्रत्यक्ष फल मिला मुझे, सत्संग करने से सुखी हुआ मैं, शांति मिली मुझे, ये उसका फल है। इसके लिए इसे पवित्रम और उत्तम विद्या कहते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम मिद उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। धर्म यानी एक सरल भाषा में सेवा, पूजा, पाठ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, श्लोक आएगा आगे। भगवान की पूजा हम कैसे करते हैं? पत्र चढ़ाने से, पुष्प चढ़ाने से, जल चढ़ा, तोय यानी जल चढ़ाने से। ये सगुण की उपासना, सरल, उसके अंदर कोई आपको कठिनाई नहीं है। भगवान के लिंग पे जल चढ़ा दिया, एक आध पुष्प अर्पण कर दिया, फल अर्पण कर दिया, सरलता से भक्ति हो सकती है। ये सगुण भक्ति। और एक निर्गुण भक्ति जो मानसिक है, मन से हम जुड़ते हैं उस तत्व के साथ। तो ये दोनों ही जो भक्ति है वो हमें क्या समझाती है? आपके अहम का नाश करो। आप जिसे अपना अहम समझते हो वो इल्यूजन मात्र है, भ्रम है, वो नाशवंत अहम है आपका।
तो शरीर के साथ आपका अहम भी चला जाएगा। अहम गया तो इच्छा गई। इच्छा का वास कहाँ है? अहंकार के अंदर। आपकी कोई भी इच्छा ऐसी नहीं होगी जिसके पीछे के आगे मैं ना हो। सत्संग करना भी एक इच्छा है, लेकिन वो डिवाइन इच्छा है, दिव्य इच्छा है। सत्संग करना है, बट किसे? मुझे। वो मैं तो है ही, ब्रैकेट में है। हम बोलते नहीं, बट इट इज ऑलवेज देयर। पानी पीने की इच्छा हुई तो मुझे पानी पीना है, वो मुझे है ही ब्रैकेट के अंदर। ये क्यों हमेशा मैं कैसे, मैं जुड़ा हुआ ही है इच्छा के साथ? कारण इच्छा का वास ही अहम के अंदर रहता है। यदि अहम ही नहीं रहा तो इच्छा कहां से आएगी? इच्छा का वास अहम के अंदर है। और भगवान से जब हम जुड़ते हैं तो हमारा अहम विलीन हो जाता है। अहम गया तो इच्छा गई, इच्छा गया तो स्वार्थ वृत्ति गई। कल तक मैं मेरे स्वार्थ के लिए कर्म कर रहा था, जब ईश्वर प्राप्त हुए तो मेरा अहम विलीन हो गया। लेकिन ये शरीर तो रहा, शरीर रहा, लेकिन अभी जो इच्छा होती है वो स्वार्थ की नहीं, परार्थ की इच्छा होती है। सकाम कर्म अभी नहीं होते क्योंकि कामना ही नहीं रही। अब जो भी कर्म होंगे वो निष्काम कर्म। व्हाट इज निष्काम कर्म? निस्वार्थ भाव से कर्म। इच्छा रहित जब करते हैं तो वो धर्म की कक्षा में आता है। धर्म यानी ड्यूटी। कई लोग पूछते हैं मुझे, भगवत गीता का सार एक शब्द में कहना है तो आई टेल धर्म। अर्जुन को क्यों कही भगवत गीता? धर्म, उसकी ड्यूटी सिखाने के लिए। योद्धा है तो तेरी ड्यूटी है कि तू लड़। यदि हम गृहस्थ है तो हमारी ड्यूटी क्या है? गृहस्थी की जिम्मेदारी उठा। यदि हम विद्यार्थी है, ब्रह्मचर्य अवस्था, तो मेरा धर्म क्या है? अभ्यास करो। इसके अलावा अन्य कोई धर्म नहीं। वानप्रस्थ आश्रम, सीनियर सिटीजन 60 के प्लस, अभी आपकी सेवा समाज के लिए, ये आपका धर्म है। परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए आपके बेटे बेटियां आ गई, बहू आ गई। अब आपका ये जीवन का ध्येय समाज, समाज के लिए कार्यरत रहो। और अंत में मोक्ष, संन्यास। अब केवल मोक्ष के लिए प्रयत्न करो। ये सभी हमारे धर्म, वर्ण आश्रम आधारित धर्म। आप जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, वो कर्म करना, वो आपका धर्म है। और ये धर्म का ज्ञान मुझे कौन सिखा रहा है? भगवत। ये ब्रह्म विद्या है। भगवत गीता ब्रह्म के करीब हमें ले जाती, ब्रह्म से एक रूप करती है। और ब्रह्म से यदि एक रूप हो गए, अहम यदि नाश हो गया, तो केवल आपके द्वारा कर्तव्य कर्म हो गए। ये धर्म, निस्वार्थ भाव से कर्म करना, ये मनुष्य का धर्म है। लायंस क्लब होते हैं, उनका मोटो है वी सर्व। बट व्हाई डू वी सर्व? वी शुड, व्हाई शुड वी सर्व? के ऊपर विचार होना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरों की सेवा करनी ही क्यों चाहिए? एक व्यक्ति को चैरिटी करनी ही क्यों चाहिए? वो अपने पग पर है, आत्मनिर्भर है, वो पर्याप्त नहीं क्या? नहीं, क्योंकि तो मनुष्य है। मनुष्य के अलावा किसी को पता नहीं है कि चैरिटी की जाती है, दान दिया जाता है, निस्वार्थ कर्म किए जाते हैं। ये आशीर्वाद भगवान ने केवल तुझे दिए हैं। और यदि मैं वो मेरा धर्म न बजाऊं तो निरर्थक तेरा जीवन। ये धर्म मुझे सिखाती है ब्रह्म विद्या। इसके लिए प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, सुसुखम कर्तुम, करने में सुखदाई है। यदि इतने साल से हम सत्संग कर रहे हैं, ये अप्रैल फर्स्ट वीक में 5 वर्ष पूर्ण करेंगे हम, और इसने जरा भी यदि आपको सुख दिया है तो समझना कि ये सत्य है। सुसुखम कर्तम,
ये करने में सुखदाई, क्योंकि वो सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम, अभी जो मैंने कहा वो करने में सरल है, इसके लिए सुख देते। चलो अगले मंगलवार हम एवरेस्ट चढ़ने जाएंगे। कितने लोग आएंगे मेरे साथ? कष्टदायी वो सुखदायी नहीं है, कष्टदायी है। जबकि ब्रह्म विद्या, सत्संग, भक्ति सुखदायी है, क्योंकि करने में आसान है, करने में आसान। आप लोगों के लिए भी कितना सरल है ना, खाली सुनने का। सुनना बहुत सरल है, अगर बोलना हो तो तैयारी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। सुनना अति सरल, और उसमें भी जूम पे, वाह वाह वाह। वीडियो ऑफ करके लेट भी सकते हैं आप, कौन देखने वाला है क्या कर रहा हूं मैं। अति सुगम जूम पे भक्ति करना, तो किसी को पता ही नहीं, चालू करके मैं घूम के आ जाऊं तो भी किसी को पता नहीं चले। तो भक्ति सुगम है, भक्ति सरल है, वैसी ये विद्या भी सरल है। इसके लिए कर्तुम सुसुखम, करने में सरल है, करने में सुखदाई है ये विद्या। और अव्ययम, व्यय यानी नाश, इस विद्या का नाश नहीं होता। आपने जो संपत्ति अर्जित की है वो कोई चोरी कर सकता है, वो कहीं आप भूल जा सकते हो। सरकार नोटबंदी भी कर सकती है, नोटबंदी करने से भी आपकी संपत्ति नाश हो गया। लेकिन ज्ञान ऐसी संपत्ति है, अव्यय है। पैसा खर्चा करो, खत्म हो जाएंगे। ज्ञान को बांटो, खर्चा करो, डोनेट करो, और बढ़ेगा। आप प्रयत्न करो, आप सुनने से जो समझ रहे हो उसकी जगह निश्चय करो कि अगली बार एक श्लोक का ज्ञान मैं सबको दूंगा। ऐसा निश्चय करोगे तो आप अधिक कंसंट्रेशन से श्लोक पढ़ोगे, आप अधिक मेहनत करके उसकी तैयारी करोगे, तो आपका ज्ञान है वो बढ़ा। जब आप बांटने निकलते हो ज्ञान को, तो आपका ज्ञान और सशक्त होता है, आपका ज्ञान और बढ़ता है। मैं जब बोल रहा था आपका मन कहीं और भटक रहा था, यू मस्ट हैव मिस्ड आउट। लेकिन जब बोलने के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो यू विल नॉट मिस आउट। बराबर ध्यान से देखोगे आप, मुझे बोलना है ये बात। ज्ञान बांटने का शुरुआत करो, आपका और ज्ञान सशक्त हो जाएगा और वृद्धि होगी उसके अंदर। तो इसके लिए इसका नाश नहीं होता, इस विद्या अव्यय है। ये विद्या आप जितनी बांटोगे उतनी आपके अंदर बढ़ेगी, वो उसकी वृद्धि होगी, आप और ईश्वर के नजदीक जाओगे। जब धर्म आप दूसरे लोग व्यक्ति तक लेकर जाते हो, तो आप उस व्यक्ति के करीब नहीं जाते, आप अनायास ईश्वर के करीब जाते हो। आप और एक स्टेप भगवान से करीब हुए। और जो भक्ति योग में आगे आएगा ना, यो मद भक्त समे प्रिय, भक्तिमान में प्रियो नर, वो आप बनोगे। भगवान का उपदेश अन्य तक लेकर गए आप, भगवान के लिए प्रिय होंगे आप। तो ये अव्यय भक्ति है, अव्यय ज्ञान है, अव्यय विद्या है। इसका नाश नहीं होता, इसकी वृद्धि होती। इन सब गुणों के लिए, इन सब लक्षणों के लिए उसे राज विद्या कहते हैं। इस श्लोक में हमने इस विद्या का महात्म्य समझा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्यय। ये था हमारा दूसरा श्लोक।
9वें अध्याय का। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, या अन्य कोई कुछ अपने विचार कहना चाहे तो इस श्लोक के ऊपर या आज के प्रवचन के ऊपर। एनी क्वेश्चंस? कि प्रार्थना करे। विजय भाई, प्रार्थना के बाद मुझे कुछ शेयर करना है। पहले Sure. प्रार्थना। तो अगली बार चौथा श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का कौन, प्रज्ञा जी एक्सप्लेन कर रहे हैं? वो अभी हम डिसाइड कर। Is it हाँ, okay? okay. Someone wants to यस do? यस, फिर 5वां श्लोक कनक बेन एक्सप्लेन करें। ठीक है, भजन और ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म निर्वाण का मंडे ट्यूसडे में निश्चय कर। तो प्रार्थना करें। कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नैनम च वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।